Yes, Pooja ma'am, now I have made you the host. Now you please check all the things and I start my work. Yes, very good morning Okay. all the students. Okay. ठीक है जी. Good morning all the students. Today when I was trying to start, so there was lot of network problem. So that is why a lot of difficulty was faced by you as well as by me and Pooja ma'am also. So anyhow, all is well if ends well. Huh? No problem. Due to technical issues, this type of problems may arise. No problem. So first of all, I want to welcome you in your new class. All the ninth class students have got promoted in 10th class. So I welcome you, wish you all the best in this new session. And just like your ninth class, this time also we are having these four sections in our subject of social science. And I myself, Meenakshi Sharma, you know me very well. Last year I was your co-host in the subject of science. So you all know me quite nicely and thoroughly. So again, four sections are there, and history, economics, geography, and pole science. Equal 20 marks to each section are there. Total 80 marks paper will be there. Okay? And in this first PT1, periodic test 1, four chapters are there in this syllabus. And first one is geography chapter, resources, economics first chapter, development, and pole science first chapter, and this history. It is not the first chapter. It is you can see from the index page. I think, let me see. It is your section first, third chapter, page number 49. Okay, first section ka third chapter, page 49. This is there. So in total, four chapters are there in our PT1 syllabus, and we are going to start this time. Normally we start with the geography part, yeah, economics part, but this time we have thought to start with this history part. So because it is a lengthy chapter and it will take time and important chapter also, that is why. Okay. So in the group I already sent a message that you be ready with your history books. Same NCRT textbooks are there and pencil should also be there with you. So in this first, nationalism in India. Now firstly, before I start, let me tell you, and you know very well also, that our country has remained under the rule of the invaders, firstly in the form of this Muslim invaders. Then after the Muslim invaders, Mughal rule ended. Then after that, our country was under the reigns of British Empire. Okay? And the Britishers, they firstly came to India for the trading purpose. 8th class mein you have already read. I think you remember chapter 1 was there, trade to territory. So firstly, the Britishers, they came here for the trading purpose. Trading purpose. So after getting settled here, after getting profits from trade of various commodities like spices, muslin was there, yeah, cotton was there. So from this type of trade, they got huge profits. By getting encouraged from these huge profits, they started interfering in the political matters of the country. And ultimately, in 1757, I hope you remember, there was a battle of Plassey, and in that battle of Plassey, the Britishers, they remained the victorious. They won this battle, and after that, they started having direct control in the political matters and administrative matters of the country. ठीक है, यहाँ तक तो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, ठीक. तो अब है कि फिर 1757 से लेके यू जस्ट सी केयरफुली वी गॉट freedom from the British in 1947. So almost 200 years, 190 years, so round figure maybe we can say 200 years were there of British rule. So during these 200 years, the Britishers, they just exploited our country. एक्सप्लॉइटेड का मतलब समझते हैं ना आप, एक्सप्लॉइट हर तरह से किसी को, किसी का शोषण कर लेना, किसी के वीकनेस का फायदा उठाना, किसी के ऊपर अपने कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना, उसको तंग करना. अब यहाँ पर तंग करने का मतलब ये नहीं कि किसी को फिजिकली तंग कर रहे हैं. तंग करने का मतलब है दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग अवर कंट्री, नॉट ओनली पॉलिटिकली बट सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली ऑल्सो. ठीक है, सोशली मीन्स सोसाइटी को अपने रूल से they try to interfere in the social matters of our country, and this
military wise also, means army wise also they started interfering, and administration wise. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, what happened in these 200 years? People of our country, India name is also given by the Britishers, otherwise the proper name of our country, the older name is Bharat, Bharatvarsh, है ना. तो people of our country, our Bharat, they started thinking about the freedom from the clutches of the British people, कि कैसे हम इनसे आज़ादी पाएं. क्लच होता है जैसे किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखना. तो ब्रिटिशर्स किसी चीज़ जैसे होते हैं ना, बोलते हैं किसी के पंजे में आ जाना, तो पंजे में आने का मतलब क्लच, किसी के कब्जे में, कंट्रोल में होना. तो पीपल ऑफ इंडिया दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि भाई हाउ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस ब्रिटिश पीपल. अब जो इंडियन पीपल थे, दे वर नॉट द ओनली वन टू थिंक लाइक दिस. Many other countries in Asia and Africa, they were also the colonies of European powers. अब यहाँ पे वर्ड आया कॉलोनी. जैसे एज यू कैन सी, वी आर नॉट गोइंग टू रीड वन बाय वन लाइन, ठीक है, आपको 9th में पता ही है. आई एम जस्ट कवरिंग द पेज, टेलिंग ईच एंड एवरी पैराग्राफ. You are requested to read all the pages, all the paragraphs very carefully and underline also. Okay, I will also let you know where to underline, but you are requested to read thoroughly, otherwise you won't be able to understand the chapter. तो यहाँ पे in second para, here you see there is one word, in India as in Vietnam and many other colonies. तो पहले कॉलोनी वर्ड का मतलब क्या होता है. कॉलोनी होता है कि जब कोई एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में करता है. द प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ ए पावरफुल कंट्री टू कंट्रोल अनदर एरिया, टू कंट्रोल अदर कंट्री. कैसे कंट्रोल करना? पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एज वेल एज इकोनॉमिकली. ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना, अपना दिखाना, अपना जोर दिखाना, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना जोर दिखाना, एंड इकोनॉमिकली, मनी मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में अपना कंट्रोल दिखाना. और वो कंट्रोल कैसे दिखाते हैं? बाय सेटलिंग सम ऑफ देयर पीपल इन द अदर कंट्री. जैसे इंग्लैंड से कुछ लोग आके यहाँ पे सेटल हुए. कौन से लोग थे वो? दे वर द पीपल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. फिर वो बाद में वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पर रहना स्टार्ट किया. उन्होंने यहाँ पर रह के उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इम्पोज किया, लागू किया, एप्लीकेबल किया. तो इस तरह से हमारा कंट्री बन गया कॉलोनी. ठीक है, तो किसी दूसरे कंट्री का हिस्सा नहीं बनना. फिजिकली तो हिस्सा नहीं बन सकते, ज्योग्राफिकली तो वी आर फार अवे फ्रॉम इंग्लैंड, बट उसके कब्जे में आ जाना, ठीक, उसको कॉलोनी बोल देते हैं. तो ऐसे ही जैसे इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स हियर, तो ऐसे ही जो वियतनाम कंट्री है, अपने मैप में देखा होगा, मलेशिया, वियतनाम, ये म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते थे पहले, ये सारे कंट्रीज एशियन कंट्रीज है. तो ऐसे वियतनाम कंट्री एक कंट्री है. तो दैट वाज द कॉलोनी ऑफ द फ्रेंच पावर. फ्रांस का कब्जा था वहाँ पे. जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो सेम वे फ्रांस का कंट्रोल था वहाँ पे वियतनाम में. ठीक है, तो अभी ऐसे वियतनाम में भी लोगों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट की. उन्होंने मतलब फ्रांस के अगेंस्ट, और इंडिया में लोगों ने एंटी कॉलोनियल, एंटी का मतलब अगेंस्ट. तो अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर वी आर मेनली वी हैव टू restrain ourselves to England instead of talking about other countries. So people here, they started their movement against the colonial powers. अब वो colonial power के against when they started the movement, तो उनका purpose क्या था? Their purpose was to get freedom from the exploitation of the British power. ठीक है, उनके खिलाफ खड़े हो जाना, उसके लिए they started their struggle. अब वो स्ट्रगल जब लोगों ने स्टार्ट की, नाउ यू सी अवर कंट्री इज़ वेरी वास्ट इन साइज एंड एरिया, पॉपुलेशन वाइज ऑल्सो. पहले भी था, इतना ही बड़ा था, रादर ज़्यादा बड़ा था, है ना. एट दैट टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल दीज वर द पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री. तो एरिया वाइज अवर कंट्री वाज वेरी वास्ट एट दैट टाइम. तो व्हाट हैपेंड, डिफरेंट पीपल इन द कंट्री, देयर टारगेट वाज टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल पावर, बट देयर प्रॉब्लम्स वर डिफरेंट. जो सब लोगों की एक प्रॉब्लम के करके वो अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं चाहते थे. डिफरेंट उनके अपने अपने रीजंस थे. ठीक है, तो अब वो डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब जैसे फार्मर्स हो गए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, कोई ट्राइबल लोग हो गए, कोई स्टूडेंट्स हो गए, कोई ऑर्डिनरी सोसाइटी के लोग हो गए, अलग अलग काम को करने वाले लोगों के ग्रुप्स. तो उनका टारगेट तो था कि ब्रिटिश से हमें फ्रीडम मिले, बट उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी. ठीक है, जैसे अगर आपको इफ़ आई गिव वन एग्जांपल, जैसे हम कह सकते हैं ना, कोई पर्सन कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है,
तो फैक्ट्री ओनर बड़ा रिप्रेसिव है, बड़ा ओप्रेसिव है। ओप्रेसिव का मतलब होता है बड़ा हार्श, हार्श सख्ती दिखाना, अपना कंट्रोल दिखाना, टू शो वंस अथॉरिटेरियन नेचर, दूसरे के ऊपर अपनी अथॉरिटी चलाना, उसको बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड बीच में कहीं आया हुआ है, दिस ओप्रेस्ड, सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड। ओप्रेस्ड का मतलब कि जब हमें कोई दूसरा पर्सन हमारे ऊपर अपना कंट्रोल चलाता है, अपनी अथॉरिटी दिखाता है, हमारे ऊपर हार्श ट्रीटमेंट करता है, हार्श मतलब बड़ा बुरा व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है हमारे साथ में, तो दैट टाइप ऑफ बिहेवियर। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस के करके वो ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे, तो उनको एक कॉमन चीज ने आपस में उनको इकट्ठा कर दिया। एंड व्हाट वाज दैट कॉमन बॉन्ड? दैट वाज कि डिफरेंट पीपल दे वांटेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ये एक कॉमन चीज थी, मतलब रीजंस अलग अलग थे, बट ये कॉमन था कि सब लोगों को कौन तंग कर रहा था? ब्रिटिशर्स तंग कर रहे थे, ठीक है। तो इस करके ड्यू टू देयर डिफरेंट नोशंस ऑफ फ्रीडम, नोशन मतलब आइडियाज ऑफ फ्रीडम, वो अलग अलग थे, बट सबका जो एक्सपीरियंस था दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज वेरिड, बट ऑल ऑफ देम दे वर हैविंग सिंगल टारगेट, दे वर हैविंग सिंगल एम टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। तो उसके करके फिर ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। तो अब ड्यूरिंग दैट टाइम, अब आपको याद होगा, there was only one main political party in the country. At that time, it was not a political party, rather it was a movement. The Congress party was there. So this party was the leading party for getting this freedom from the British people. ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का एक मेन था उस समय, और कोई ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज तो थी नहीं, आजकल की तरह से कुछ भी नहीं था। तो फ्रीडम स्ट्रगल ही देयर मेन मोटिव वाज देयर। तो उसके करके फिर कांग्रेस पार्टी में 1915 में महात्मा गांधी, आई होप यू रिमेंबर इन 8th क्लास यू हैव रेड अबाउट दिस। 1915 में महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वहाँ पर पहले रहते थे, तो ही केम हियर। 1915 से पहले भी कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था 1885 में, तो इतने साल तक महात्मा गांधी का रोल नहीं था, ठीक है। 1915 के बाद रोल ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड। तो व्हेन yes, I hope now I am audible bete, ठीक है। So in this, firstly, today we are facing lot of problem. So
you know very well that in 1914 first world war started. I hope you remember, and this world war continued till 1919. ठीक है, एंड ये वर्ल्ड वॉर किसके बीच में थी? इट वाज बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स. अब ये सेंट्रल पावर्स कौन सी थी? तो आपने याद रखना है ये नाम इसका. सेंट्रल पावर्स में आ जाते थे मेन 3 कंट्रीज. देवर ऑस्ट्रिया हंगरी, यूरोपियन कंट्रीज थे ये. ऑस्ट्रिया हंगरी, सेकेंड वाज जर्मनी एंड थर्ड वाज टर्की. टर्की जो है वो यूरोपियन कंट्री नहीं है, वो एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है. तो ये 3 मेन पावर्स थी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी एंड टर्की. These were called central powers, and the opposite to these central powers, कौन से countries were there in the fight? They were England, Great Britain, and then there was Italy, there was Russia, Japan, and later on the allied powers they were joined by this America also. ठीक है, बाद में अमेरिका ने ज्वाइन किया. तो इनके बीच में फाइट हो रही थी इनके बीच में. एंड द कंट्रीज विच वर फेवरिंग, सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे वर फेवरिंग दीज एलाइड पावर्स, और सम कंट्रीज दे वर फेवरिंग सेंट्रल पावर्स. तो सब एक जैसे 2 ग्रुप बन गए पूरे वर्ल्ड में, सब आपस में लड़ रहे थे. तो उसको बोल दिया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो अब उस जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई तो उस समय हमारे कंट्री पे कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का ही चल रहा था. तो ड्यू टू दैट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ब्रिटेन उसमें, ग्रेट ब्रिटेन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था इन द एलाइड पावर्स, उसमें पार्टिसिपेशन करने के करके अब उनको बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ रही थी. ठीक है, दे वर इन नीड ऑफ मनी, क्योंकि वॉर टाइम में ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर देयर. तो अब वो मनी कहाँ से आएगा? एंड देन दैट दे थॉट टू टेक दैट मनी टू एक्सप्लॉइट दैट मनी फ्रॉम इंडिया. क्योंकि इंडिया एक शुरू से ऐसे कोई पुअर कंट्री नहीं था. इट वॉज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, थ्राइविंग कंट्री था, एक वी कैन से रिच कंट्री था. बट स्लोली एंड स्टेडली ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ये पुअर बनता जा रहा था. बट पैसा था, बट दैट वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स. तो अब उन्होंने कैसे वो मनी का अरेंजमेंट किया, यू कैन सी इन द सेकेंड पैरा. तो ड्यू टू ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, दे थॉट टू इंक्रीज द इनकम टैक्स ऑन द पीपल, कि लोगों के ऊपर, इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए. फिर देन दे ऑल्सो इम्पोज्ड हैवी कस्टम ड्यूटीज. कस्टम ड्यूटी होती है जब भी कोई कमोडिटी को हम लेते हैं किसी और कंट्री से, मतलब व्हेन एनी कमोडिटी वी कैन से इंटरसेक्ट्स और गेट्स ट्रांसपोर्टेड उस पर जो टैक्स लगा दिया जाता है उसको कहा जाता है कस्टम ड्यूटी. तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने कस्टम ड्यूटी लगा दी. फिर उन्होंने क्या कर दिया, और जो चीज़ों के प्राइसेस थे, नॉर्मली जो भी चीज़ें उनके कंट्रोल में थी उनके प्राइसेस बढ़ा दिए. मार्केट में रेट बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया. एंड देन आम लोगों के लिए हार्डशिप्स फॉर कॉमन पीपल. हार्डशिप्स का मतलब होता है इन रूटीन लाइफ पीपल फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. एक ड्यू टू वेरी हाई प्राइसेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू सेटल डाउन ऑल द थिंग्स. जैसे अभी जब कोरोना स्टार्टेड लास्ट ईयर, तो उस समय इन द बिगनिंग, इन द वेरी बिगनिंग, द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज दे इंक्रीज्ड ए लॉट. बाद में थोड़े नॉर्मल हो गए, बट शुरू में दे इंक्रीज्ड ए लॉट. तो इस करके ही इन्फ्लेशन के करके पीपल फेस्ड प्रॉब्लम्स टू मैनेज देयर हाउस होल्ड बजट्स. और फिर एक और किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, फोर्सफुली दे आस्क्ड द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू ज्वाइन द आर्मी वेदर दे वांटेड और नॉट. किसी का दिल करे या ना करे आर्मी में जाने के लिए, बट स्टिल दे वर इंसिस्टेड, दे वर आस्क्ड टू ज्वाइन द आर्मी. तो ऑल एंड देन देयर वाज दिस famines were also there, crops failed in many parts. कहीं पर बारिश नहीं हुई, देयर वाज पुअर मॉनसून, कहीं पर कोई और रीज़न था. तो उसके करके कई जगह क्रॉप्स भी फेल हो गई. तो ड्यू टू क्रॉप फेलियर पीपल वर हैविंग शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो जब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होती है तो फिर फेमिन्स भी हो जाते हैं, अकाल पड़ जाते हैं, मैनी पीपल डाइड. फिर और कोई एपिडेमिक्स भी हो चुकी थी उस समय. एपिडेमिक क्या होता है, जैसे अभी ये जो प्रॉब्लम चल रही है, एपिडेमिक मतलब स्प्रेड ऑफ ए डिसीज एट ए वेरी लार्ज स्केल. इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है एट ए वेरी लार्ज स्केल, व्हेन इट गेट्स स्प्रेड इन द सोसाइटी, तो उसको हम एपिडेमिक कह लेते हैं. तो ड्यू टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स इंडियन पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ये सारा कुछ क्यों हो रहा था, इसमें मेजोरिटी ऑफ द रीजंस वर रिलेटेड टू इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं. और वो क्या था, ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो उसके करके हमारा जो इकोनॉमिक सीन ऑफ आवर कंट्री एंड पॉलिटिकल सीन ऑफ आवर कंट्री, ये सारा कुछ हमारा चेंज हो गया. ठीक है, तो ये दिस वाज जस्ट द बैकग्राउंड.
इस बैकग्राउंड में व्हेन टाइम ऑफ दिस ईयर ऑफ 1915 कम्स, तो उस समय एंट्री होती है महात्मा गांधी की। जैसे आप मूवी देखते हैं ना कोई, तो मूवी में पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बनाते हैं, थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं, फिर हीरो की एंट्री होती है या हीरोइन की एंट्री होती है ना, तो सेम वे 1915 के अराउंड जो है एंट्री ऑफ महात्मा गांधी टुक प्लेस। ठीक है, तो उसके बाद अब आके उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, तो अब आके व्हेन ही केम टू इंडिया, तो वी अगेन स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दिस सत्याग्रह इन इंडिया ऑल्सो। अब ये सत्याग्रह क्या था, हमें ये पता होना चाहिए। सत्याग्रह 2 वर्ड्स को ऐड करके बनता है, सत्य का आग्रह, मतलब ट्रूथ, द अराइवल ऑफ ट्रूथ या द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रूथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो गांधी जी का जो व्यू था, सी ये दिस वाज हिज पर्सनल व्यू पॉइंट विच ही इम्पोज्ड ऑन द कंट्री, एंड सरप्राइजिंगली मैनी पीपल फॉलोड दैट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंडिविजुअल के लिए जो चीज़ ठीक हो सकती है वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी कंट्री के लिए, पूरे कंट्री के लिए भी ठीक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये चलो एनी हाउ, यहाँ पर तो अभी हमने गांधी जी का फेवर में ही बताना है, बट दिस पॉलिसी ऑफ गांधी जी इज नॉन वायलेंस सत्याग्रह, दिस हार्म्ड अवर कंट्री ए लॉट। वो कैसे, वो अब आपको मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी, तो पहले वी शुड नो द मीनिंग। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये क्या था सत्याग्रह, कि भाई जो हमारे ऊपर ओप्रेसर है, ओप्रेसर का मतलब जो पर्सन हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कि हमने उसको आगे मारना नहीं है, उसके साथ वायलेंट नहीं होना है, रादर अपने चुपचाप तरीके से बिना वायलेंट हुए अपनी बात को रखना है। अगर वो हमें मारता है तो उसकी मार भी खा लेनी है। ये दिस वाज अ व्यू पॉइंट ऑफ सत्याग्रह, कि अगले की, जिसको बोलते हैं ना कॉन्शियंस को झकझोरना, किसी को अपनी सच्चाई से, अपने ट्रूथफुल बिहेवियर से किसी को ये दिखाना कि हाँ आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग विद अस, और हम उसको आपके एक्सप्लॉयटेशन को बियर कर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं। ये गांधी जी का आइडिया था सत्याग्रह का, कि आगे से वॉयलेंट नहीं होना, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो मर्जी करे, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी हार्श विद एनीवन, ये उनका था। ठीक है, तो अब उन्होंने ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, सी इन द नेक्स्ट पैरा, आप अपने बुक के ऊपर देख सकते हो पेज 55 में। तो अब उन्होंने, इफ यू रिमेंबर इन 8th क्लास, महात्मा गांधी फर्स्टली मेड यूज ऑफ दिस सत्याग्रह इन चंपारण, बिहार में। आई होप यू रिमेंबर इंडिगो रेवोल्यूशन, इंडिगो रिवेलियन, ब्लू रिवेलियन करके एक आपने, यू हैव रेड द टॉपिक, तो वहाँ पे गांधी जी अप्लाइड दिस। तो 1916 में ही मेड यूज ऑफ दिस सत्याग्रह इन चंपारण, बिहार में। उसके बाद 1917 में ही वेंट टू खेड़ा, खेड़ा इज द नेम ऑफ ए प्लेस गुजरात स्टेट में। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी खेड़ा में, वहाँ पे क्रॉप फेलियर भी हो चुका था, और वहाँ पे प्लेग की एपिडेमिक भी फैल चुकी थी। ठीक है, प्लेग की जो डिसीज थी, एपिडेमिक थी, बीमारी थी, उसके करके बहुत लोगों की डेथ भी हो चुकी थी, और वहाँ पे क्रॉप फेल्योर भी हुआ था। तो और जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर स्टिल इन कलेक्टिंग देयर रेंट, एंड द अमाउंट ऑफ रेंट वाज वेरी ह्यूज। उन्होंने अपना रेंट बढ़ा दिया। रेंट ऐसे हम बोल सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो भी क्रॉप होती थी, जो भी फसल होती थी, उसका कुछ पार्ट वो ब्रिटिश जो लोग थे, गवर्नमेंट थी, वो एज रेंट, एक लगान के तौर पे वो वसूल करती थी, तो उसको रेंट कह दिया जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रेंट का जो परसेंटेज थी वो बढ़ा दी, विदाउट पेइंग अटेंशन टू दिस फैक्ट कि भी फार्मर्स कहाँ से देंगे, उनकी तो क्रॉप्स ही फेल हो रही हैं, क्रॉप हो नहीं रही, तो वो पैसा कहाँ से देंगे टैक्स का, रेंट का, इस बात को ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही वेंट देयर एंड स्टार्टेड हिज सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद 1918 में ही वेंट टू अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में वहाँ पर किसकी प्रॉब्लम थी, जो कॉटन मिल्स में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके प्रॉब्लम्स थी, उनकी उनकी जो वेजेस थी वो नहीं दी जा रही थी बाय द ओनर्स, और ओनर्स कौन थे, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स थे। तो उनके लिए, उनके फेवर में बात करने के लिए गांधी जी वेंट देयर। Just the meaning of this para is that कि in 3 years 1916, 17, 18 Gandhi ji took this opportunity of starting his सत्याग्रह। कहाँ पर, 1916 में चंपारण में, इंडिगो से रिलेटेड मैटर में,